Yes. Hi. Uh, Hi. so we welcome you all in our today's series on the video. If you would have seen our earlier video on the credit section, you would be well aware that we have started a series on credit. In our earlier video, we have discussed something on how to renew CC, cash credit renewal, with enhancement. So this is the part 2 of the video wherein we will be discussing on how to practically approach to that assessment part. So again today I'm having Dhanekar sir with us, who would be discussing on this subject, and he is the expert for today's topic again. So we welcome you, Dhanekar sir, once again on this channel. Yes, thank you. And shall we start the video straight away? Yes. So before starting, let me give a brief intro of what we discussed in our earlier video. If you have not seen our earlier video, then I strongly recommend you to go and first watch that video and come and do watch this video again. So in our earlier video, we had discussed, we have assumed that a borrower has approached to a manager asking for enhancement is in CC renewal. So we have presumed it from 10 to 15 lakhs. So therein we have discussed that first we'll first analyze his proposal, and once we are satisfied with that assessment of the analyzing part, we will ask for the documents. Now once we are satisfied with those documents, now comes the part wherein we will be doing the actual assessment proposal. So without wasting any further time, let us straight away start our assessment video part. So I am now sharing the screen for you guys. Okay, so first, we'll start with net working capital. Yeah. Yes. Shall I start, Rahulji? Yeah, just a second, sir. Yes, sir. Yes. Rahulji, you can put that entire table. Yeah. Okay, so the table is in front of you. Now I would hand over the session to Ghanekar sir to explain all these aspects in detail. Sir, over to you. Yes, thank you, Rahulji. So, friends, as rightly told by Rahul, you must. I would suggest you must watch the earlier first video also. And if you go through entire series, our efforts will be to give you the maximum input for processing the cash credit proposal. So today we will be discussing in 3 parts. पहला जो पार्ट है उसमें वो रहेगा कि नेटवर्थ कैपिटल मींस मार्जिन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए. दूसरा रहेगा की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, उसमें जो मेजर की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स रहते हैं उसमें कैसे कमेंट्स क्या क्या देने चाहिए. और थर्ड विल बी एक्चुअल assessment of CC limit as per Nayak committee and Tandon committee. So first we will start with our net working capital or margin. Before I go to that net working capital, I would just brief you regarding CMA data, because we will start our assessment based on the CMA data submitted by the borrower. CMA data में क्या आता है? CMA data का लॉन्ग फॉर्म है क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट. उसमें बैंक को यह मिलेगा कि बोरोवर अपनी तरफ से अपना फ्यूचर जो 3 साल में 4 साल में जो उसके प्रोजेक्टेड प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट रहेगा, उसका 4 पार्ट्स में, उसमें 2 रहता है कि फर्स्ट इट विल बी ऑडिटेड फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, and then third year means current year it will be estimated,
and next it will be projected for 3 years, or in case of term loan it will be for 5 years. और उसमें जो मेजर रेशियोज दिए जाएंगे बोरोवर की तरफ से, एंड अकॉर्डिंग टू दैट we will further decide while deciding the proposal whether we can sanction the limit and how much amount we can sanction. So in case of CC assessment, these are the three important tables. First is net working capital. So net working capital is nothing but the margin available in the business. हमने लास्ट टाइम जो फर्स्ट इसमें एग्जांपल लिया था सीसी एनहांसमेंट फ्रॉम 10 लाख टू 15 लाख, तो वो एग्जिस्टिंग बोरोवर है. एग्जिस्टिंग बोरोवर में जब हम बैलेंस शीट लेते हैं तो उसमें उसका मार्जिन अवेलेबल रहता है फॉर वर्किंग कैपिटल. तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला ये है कि लॉन्ग टर्म सोर्सेस माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस, और उसमें दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज. दोनों से फिगर सेम आएगा, लेकिन जब हम इट इज एडवाइजेबल कि लॉन्ग टर्म सोर्सेस माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे. अभी लॉन्ग टर्म सोर्सेस में क्या आता है, तो बेसिकली लॉन्ग टर्म सोर्सेस कंप्राइज ऑफ शेयर कैपिटल इन द बिजनेस, देन जनरल रिजर्व्स, देन अदर रिजर्व्स इफ एनी, then it will be profit and loss account. In case of private limited companies, that profit and loss account is shown separately. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के इसमें क्या होता है कि शेयर कैपिटल कन्वर्ट करने में उनको खर्चा आता है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सेपरेट दिखाते हैं, इसलिए हमें वो भी उसमें इंक्लूड करना है. उसके बाद डिबेंचर्स है, ये सब होते हैं ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज. लॉन्ग टर्म सोर्सेज मीन्स क्या है कि जिसका कोई भी पेमेंट है वो विद इन 1 ईयर नहीं करना है, हमें विद इन 1 ईयर उसका कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए उसको हम लॉन्ग टर्म सोर्सेस कहते हैं. और उसमें और आता है कि ये तो हो गए प्रोप्राइटर्स के फंड्स हो गए मोस्टली. उसके बाद जो लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हुए हैं और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट कोई कस्टमर्स के पास से लिए हुए हैं, तो वो भी उसमें इंक्लूड होते हैं. तो ये उसका जो टोटल आएगा इधर लॉन्ग टर्म सोर्सेस, total long term sources, first we will total calculate from the balance sheet total long term sources, then long term uses. long term uses में ये जो sources है ये अभी पहले long term use के लिए यूटिलाइज होंगे. तो long term uses क्या है, उसमें है fixed assets. net fixed assets means fixed assets minus depreciation, it is net fixed assets. उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स अगर कंपनी ने कहा किए हैं तो वो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे. अदर नॉन करंट एसेट्स आएंगे, देन एडवांसेस टू सप्लायर्स ये आएंगे. इंटेंजिबल एसेट्स मींस उसमें होता है कि पेटेंट्स, गुडविल्स ये आएंगे. अभी उसमें टोटल फिर हम टोटल लॉन्ग टर्म यूजेस आएगा हमारा, और लॉन्ग टर्म सोर्सेस माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस, ये टोटल करने के बाद जो बचेगा दैट अमाउंट विल बी अवेलेबल एज अ मार्जिन फॉर वर्किंग कैपिटल. तो इसमें हम ये कैलकुलेट करने के बाद हमें ये पता चलता है कि ऑलरेडी बोरोवर के पास कितना मार्जिन है. अभी जब भी कोई असेसमेंट होता है तो देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्जिन व्हिच इज नॉर्मली 25% इन बिजनेस. और कभी कभी ऐसे होता है कि बोरोवर के पास 25% से भी ज्यादा मार्जिन रहता है. तो उसमें ये इस तरह से कैलकुलेट होता है कि जब मार्जिन ज्यादा है तो ऑलवेज इट इज अ फेवरेबल पोजीशन. तो इसलिए हमें ये क्योंकि हम आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें नेटवर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन हमारे पास होना चाहिए. और इसमें एक डेफिनेशन ऐसा है कि excess of long term sources over the long term uses gives us the margin available for working capital. That is the basic this is the thumb rule कि excess of LTS over LTU gives us margin available for working capital. That is the first thing. Rahul ji, any questions on this? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि सिंस वी आर रिन्यूइंग द प्रपोजल ऑफ द आई मीन रिक्वेस्ट ऑफ द बोरोवर टू एनहांस द प्रपोजल, वो ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो ये जो बैलेंस शीट हमारे सामने रखा है ये वो अभी सबमिट करने वाला हमको, राइट? उसका नया बैलेंस शीट इज गोइंग टू सबमिट अस. हाँ, उसमें ये हमारा ईयर 1 का हो जाएगा, ये ईयर 2 का हो जाएगा, ये ईयर 3 और ईयर 4. तो सपोज दिस इज 2021, तो यहाँ पे 2021, 2022, 23, 2023 और ये 2024, राइट? हाँ ठीक है. ओके.
तो ठीक है, बस यही मुझे पूछना था सर कि ये बैलेंस शीट जो है हाँ एक्चुअली, बराबर हमें हाँ सबमिट उसमें करेंगे। एक्चुअली क्या है, सॉरी, इसमें एक्चुअली क्या है ना कि उसमें एक ही है कि उसमें ऑडिटेड फिगर्स भी 2 साल के हम लेते हैं, क्योंकि तो वो उसमें ऑडिटेड फिगर्स आएंगे और उसके आगे आगे के 3-4 साल, 4 साल का आएगा, क्योंकि ऑलवेज वी हैव टू कंपेयर ऑल द फिगर्स विद द ऑडिटेड फिगर्स, क्योंकि ट्रेंड सेम है क्या नहीं ये देखना चाहिए, या जो इंक्रीज है वो भी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है क्या नहीं, इसलिए हमें पिछले 2 साल के भी लेना जरूरी है। सो यस व्यूअर्स प्लीज नोट दिस दैट कि हमें पिछले 2 साल के भी लेने चाहिए ताकि ट्रेंड मैच कराना जरूरी। ओके, यस। नेक्स्ट, की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, shall we move there? yes sir. So as sir told us that excess of long term sources over long term usage is the amount available as a margin in the business, which is called net working capital, which is already available in the business. सर मेरा एक क्वेश्चन है, तो जितना नेटवर्किंग कैपिटल होगा बिजनेस बोरोवर का उतना अच्छा है वो हमारे लिए बैंकर्स के Yeah, पर्सपेक्टिव। yes, definitely. ओके, so now we are going to discuss on key financial indicators. So here I present the table before you. Sir, Yes. Yes. Now we will see, this is the second table that we are discussing, we will be discussing today, key financial indicators. अभी ये जो हम 3 टेबल बोलेंगे, 3 चीजें, तो this will be, if you put all in only these 3 tables in the note, and even if you miss other parameters, then also it will be okay, क्योंकि क्या है ना कि ये 3 टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये 3 टेबल चूज किए हैं। बाकी अदर भी टेबल्स रहते हैं, लेकिन जो एक्सेप्शनली बिग प्रपोजल्स के लिए जरूरी होते हैं, नॉर्मली हम ब्रांच लेवल पे समझो, ब्रांच लेवल के सैंक्शन में या 5-6 करोड़ तक भी ये 3 टेबल ही इंक्लूड करेंगे तो भी इट विल डू। ओके, तो इसमें फर्स्ट पार्ट आएगा, इसमें क्या है कि ग्रॉस सेल्स। तो जब भी हम ग्रॉस सेल्स बोलेंगे, तो ग्रॉस सेल्स मींस ये उसमें सीएमए डेटा में दे देंगे वो कि ग्रॉस सेल्स इतने है करके। तो हम जब अपने प्रपोजल में डालेंगे तो सीएमए डेटा में कितना भी होने दो, लेकिन इन प्रपोजल वी विल पुट द एक्सेप्टेड लेवल ऑफ ग्रॉस सेल्स, क्योंकि हम कितना एक्सेप्ट करते हैं फिर उसमें जस्टिफिकेशन हमें देना पड़ता है कि प्रपोजल बोरोवर ने समझो 1000 के ग्रॉस सेल्स दिए है, लेकिन वी विल पुट एज पर एक्सेप्टेंस लेवल, क्योंकि हम उसका एनालिसिस करेंगे कि कितना ट्रेंड है। तो उसके लिए रूल ये है कि नॉर्मली वी शुड नॉट एक्सेप्ट द इंक्रीज ऑफ मोर देन 30% ओवर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के जो कुछ सेल्स रहेगा उसके 30% से ज्यादा हमने ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सपोज इन द फर्स्ट ईयर द लेवल ऑफ सेल्स इज 100, then in the second year it is 120, then in the third year it is 140, and in the third year means always first year is audited first year, second year is audited second year, then third year will be estimated for the current year, fourth year onwards it will be projected। तो फोर्थ ईयर में जो प्रोजेक्टेड आएंगे वो थर्ड ईयर के जो कुछ ये रहेगा एस्टिमेटेड रहेगा, या थर्ड ईयर में एस्टिमेटेड भी जो आएंगे वो सेकंड ईयर में जो आपका एक्चुअल फिगर रहेगा उसके 30% से ऊपर ज्यादा नॉर्मली हम एक्सेप्ट हमने नहीं करना चाहिए। और अगर करना है 30% से ऊपर तो इट शुड बी प्रॉपरली जस्टिफाइड। 30% से ज्यादा अगर है तो उसमें जस्टिफिकेशन प्रॉपर हमें लेना चाहिए, और वर्क जो कंफर्म्ड ऑर्डर्स ऑन हैंड वो भी हमें उसमें रिकॉर्ड पे लेना चाहिए। देन ओनली वी शुड एक्सेप्ट दैट, अदरवाइज इट शुड बी एट 30% और बिलो 30%। ओके, दूसरी बात उसमें यह है कि उसमें क्या होता है ना कि इन लिमिट विद एग्जिस्टेंट, ठीक है, इन केस ऑफ ग्रॉस सेल्स दैट मच इज ओके। राहुल जी एनीथिंग? नहीं सर। ओके, देन सेकंड इज पैट। पैट मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है वो हम ऑलवेज जब असेसमेंट करेंगे तो वी विल रीड इट अलोंग विथ कैश एक्रूवल्स। पीएटी में क्या होता है, कभी कभी समझो कंप्यूटर का बिजनेस है और करंट ईयर में या लास्ट ईयर में, करंट ईयर में उसने कोई कंप्यूटर का आइटम, बड़े आइटम्स परचेस किए हैं, तो उसमें डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होता है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इट मे गो इन शो लॉसेस।
but still if the cash accrual is showing positive figure, अगर कैश एक्रूवल पॉजिटिव फिगर दिखा रहा है तो भी दैट विल बी एक्सेप्टेबल। हमने सिर्फ ये देखना चाहिए कि कैश लॉस नहीं है। बिजनेस में डिप्रिसिएशन लॉस चलता है, लेकिन कैश लॉस अगर है तो फिर हमें माइन्यूटली देखना चाहिए इसके क्या रीजन है, कैश लॉस क्यों आ रहा है। कोई अगर स्पेसिफिक रीजन है कि कोई बड़ा उसका डेटर जो है उसने पेमेंट नहीं किया है, and that if that is acceptable to us with proper reasons, then only, even if cash loss is there, we can go for the proposal. But normally enhancement proposal में अगर cash loss है तो हम नहीं प्रोसेस करेंगे। अभी उसका नेक्स्ट पार्ट है नेटवर्थ। तो नेटवर्थ जो है, नेटवर्थ का डेफिनेशन है कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस इंटेंजिबल एसेट्स। तो कैपिटल प्लस रिजर्व ये हो गए प्रोप्राइटर के फंड। उसमें क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स मींस उसमें गुडविल है, पेटेंट्स है, वो तो उसका सालों साल बिजनेस कर रहा है, उसके लिए जो उसको बेनिफिट मिलता है, मार्केट में नाम मिलता है, उसके लिए हाइपोथेटिकल फिगर दिखाया हुआ रहता है। इसलिए वो, और वो जब दिखाते हैं तो कैपिटल में ऐड किया हुआ रहता है, वो इसलिए हमें डिडक्ट करना चाहिए क्योंकि एक्चुअल में उसका कुछ उस जो कैपिटल इन्फ्लेशन हुआ है उसमें, तो उसका कुछ वैल्यू नहीं, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, वो उसके पास सिर्फ गुडविल है। इसलिए गुडविल का यूज जब उसका कोई बिजनेस प्रॉब्लम में आता है और मार्केट में जब वो पैसा खड़ा करने जाएगा तो उसको उसका फायदा होगा। लेकिन हम असेसमेंट करेंगे तब गुडविल शुड बी डिडक्टेड, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस इंटेंजिबल एसेट्स, ये करके नेटवर्थ का फिगर आएगा। नेटवर्थ में भी हम ये देखेंगे कि वेदर दैट नेटवर्थ इज रेगुलरली इंक्रीजिंग, मे बी बाय देयर में बी सम वेरिएशन, क्योंकि कोई किसी साल में थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, किसी साल में ज्यादा होगा, तो थोड़ा इधर उधर उसका डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर किसी बीच में एक आधे साल में डिक्रीज भी हो रहा है तो उसका रीजन उसने देना चाहिए कि ड्राइंग के लिए कुछ अलग उसका कोई एक्सपेंसेस आ गए, इसलिए फिर उसने ड्राइंग के लिए पैसा निकाला है, इट शुड बी जस्टिफाइड। तो ये इतना, हाँ इतना हो गया नेटवर्थ के ऊपर। उसके बाद ये जो मेजर है, उसके बाद दो रेशियोज आते हैं, एक TOL TNW रेशियो और करंट रेशियो। तो उसमें ये दोनों रेशियो में ये है कि कोई भी रेशियो, नॉट नेसेसरीली दीज टू रेशियो, बट कोई भी बैलेंस शीट में जो रेशियो आता है, जैसे हमने पहले NWC का डिस्कस किया है, तो अगर लास्ट में हमने ये बोला कि अगर मार्जिन आपका फेवरेबल है, NWC अगर फेवरेबल है, तो नॉर्मली ऑल द रेशियोज विल बी फेवरेबल, क्योंकि each of these ratio is directly related to margin। अगर मार्जिन ज्यादा है तो अभी TOL TNW का क्या मतलब है कि TOL मींस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज और TNW मींस टेंजिबल नेटवर्थ, इट मींस प्रोप्राइटर्स फंड्स। तो इसमें रेशियो ऐसा है, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर्स फंड्स। तो वो रेशियो का जो नॉर्मल अपने बैंक के लेंडिंग पॉलिसी के हिसाब से, या जो स्टैंडर्ड RBI ने भी बोला है उसके हिसाब से, फॉर MSME दिस रेशियो इज टू बी 1:4, देन फॉर अदर मींस नॉन प्रायोरिटी इट शुड बी 1:3, एंड फॉर एक्सपोर्ट्स इट इज allowed as 1:5, because export is a thrust area as per government guidelines। इसमें इसलिए थोड़ा कम मार्जिन है तो भी TOL TNW 1:5 है तो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। MSME में भी तो बैंक गवर्नमेंट का और RBI का ऑलवेज MSME को ज्यादा प्रमोट करने का ये रहता है, थ्रस्ट रहता है, इसलिए उसमें भी थोड़ा लीवे दिया है कि 1:4 रेशियो अगर है। तो वो कैसे होता है कि 1:3, नॉर्मली एजम्पशन ये है कि 1:3 रेशियो मीन्स 25% मार्जिन, 1:4 रेशियो मीन्स 20% मार्जिन, ये इस तरह से ये आता है। इसलिए वो मैंने ऑलवेज, इसलिए पहले मैंने बोला कि इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू मार्जिन। अगर मार्जिन अच्छा है तो दिस रेशियोज विल बी फेवरेबल। ठीक है राहुल जी, और इसमें कुछ? सर ये जो TOL बाय TNW का जो आपने मतलब बताया, इसका मतलब कि टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, मतलब हमारी जो लायबिलिटीज जो हमें पे करनी है डिवाइडेड बाय जो हमारी खुद की मार्जिन है, उसका मतलब बेसिकली यही हो गया, करेक्ट? तो हाँ मैं बोलता हूँ थोड़ा एक एग्जाम्पल, आई विल जस्ट क्लैरिफाई बाय वन एग्जाम्पल। यस सर प्लीज। ठीक है, यस। एक उसमें समझो, आप ऐसा समझो कि बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटीज का टोटल है 100। ओके। ठीक है, आप लायबिलिटीज का टोटल 100 रुपया है, यू कैन राइट इट समवेयर। यस सर। एंड अगर आपका, हाँ, और अगर आपका 20 रुपीज आपका 80 रुपीज आपका टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज है, ओके। और TNW है आपका 20।
टोटल तो आउटसाइड आपका रेशो आता है उस 80 80। हाँ, एंड एंड TNW tangible worth है 20। ओके So this will be so this ratio will be 1:4. For MSME this will be acceptable, but if the same with the same proposal this ratio will not be acceptable for non-priority. In this way we should calculate this the balance sheet का total ये करके उसमें से आपका TNW माइनस करो, फिर वो रेशियो निकालो, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय TNW। ठीक है। यस हाँ, अभी आगे जाएंगे करंट रेशो। तो करंट रेशो में यस, करंट रेशो का यह है कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में क्या आता है, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ करंट एसेट्स ये है कि मेजर कंपोनेंट, बाकी तो बहुत सारे बैलेंस शीट में अलग अलग है लेकिन वो सब इसमें ही कन्वर्ट होते हैं। आइदर इट विल बी स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। ठीक है, दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ करंट एसेट्स। एंड सन्ड्री लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज इफ एनी। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में जो मींस जो बिजनेस के सन्ड्री क्रेडिटर्स वगैरह रहते हैं, और अदर क्रेडिटर्स, अदर सन्ड्री क्रेडिटर्स में कभी कभी क्या होता है कि कोई टैक्स लायबिलिटी पेंडिंग रहता है, दैट इज टू बी पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर ओनली, या फिर कोई लोकल टैक्सेस रहते हैं वो पेमेंट करना बाकी है। तो दैट आल्सो जो जो आपको इस साल में, एक साल में विद इन 1 ईयर पे करना है, इट विल कम इनटू करंट लायबिलिटीज। तो इसमें जो उसका जो रेशो है उसमें भी स्टैंडर्ड ये है कि फॉर MSME यूनिट्स इट इज 1:1.17, then for all other industries it is 1:1.25. So 1:1.17, 1:1.17 is the deadline। उसके नीचे अगर है तो फिर हमें उसके रीजंस देखना चाहिए, फिर चारों साल का कंपेयर करना चाहिए, एक आधे साल में अगर कम है तो क्यों कम है, फिर उसका जस्टिफिकेशन। इन CC proposal whenever in spite of ratios are unfavorable and if you are able to properly justify by taking the reasons from the borrower, you can very well sanction the loan। ratios एडवर्स है इसलिए प्रपोजल नहीं करना है, ऐसे नहीं होता है। रेशियोज कभी कभी एक आधे साल में एडवर्स होते हैं ड्यू टू सम रीजंस। ऐसे केसेस में हम ऐसे करते हैं कि कभी कभी थोड़ा मार्जिनली उसका कैपिटल समझो कम है तो हम उसको बोलेंगे कि हम सैंक्शन करते हैं एंड वी पुट द कंडीशन टू इन्फ्यूज द कैपिटल by putting the condition कि borrower should infuse the capital within 3 months, say 6 months, but this should not be the regular feature in case of all the proposals। Exceptionally in some proposals we can do it। ठीक है राहुल जी? ओके हाँ, ओके, वी कैन गो अहेड विद नेक्स्ट। ओके सो मैं एक ब्रीफ बता देता हूँ सर अपने व्यूअर्स को, जो अभी आपने हाँ। बताया कि ग्रॉस सेल जो होता है, ग्रॉस सेल को हम बेसिकली 30% से ज्यादा अगर है तो उसके लिए वैलिड रीजंस होना चाहिए व्हाई दैट सेल्स इज इंक्रीजिंग मोर देन 30%। इन जनरल वी शुड एक्सेप्ट इट एज 30% इंक्रीज। नेक्स्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें ऑलवेज कैश एक्रूअल को लेना है। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी नेगेटिव हो बट कैश एक्रूअल शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव बिकॉज कैश फ्लो उसका बना रहना चाहिए एंड वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ कैश एक्रूअल। और अगर ये नेगेटिव है तो देन वी शुड गो इन डेप्थ एंड वी शुड एनालाइज द फैक्ट व्हाई इज इट बिकमिंग नेगेटिव। नेक्स्ट इज TOL by TNW। ये जो रेशियो है इसमें जैसे कि सर ने बताया कि इसके कुछ स्टैंडर्ड रेशियोज होते हैं। MSME के लिए 1:4, 1:3 नॉन प्रायोरिटी के लिए, 1:5 फॉर एक्सपोर्ट्स के लिए। ये एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ गया होगा। देन इस करंट रेशियो के बारे में जैसे सर ने बताया इज नथिंग बट रेशियो ऑफ करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में हमारे जैसे जो एक साल के अंदर जो हैं वो हो गए करंट एसेट्स, जैसे कि हमारे कैश हो गए, डेटर्स हो गए एक्सेट्रा। और जो करंट लायबिलिटीज हो गए जैसे हमारे सेंट्रल क्रेडिटर्स हो गए, इस तरह चीजें हमारे करंट लायबिलिटीज में आती है जो हमें एक साल के अंदर अंदर पे करनी रहती है। इसमें भी स्टैंडर्ड रेशियोज है। MSME के लिए 1:1.17 एंड 1:1.25 फॉर नॉन प्रायोरिटी। और DSCR तो सर टर्म लोन के लिए आता है, इसलिए शायद हम ये Yes, DSCR we will DSCR we will discuss in detail when we will discuss regarding term loans। ओके नेक्स्ट। तो जैसे सर ने बताया
If margin is available in the business more than 25%, normally the ratios are favorable. And all these ratios are basically dependent on margin, that is net working capital. Hence, when ratios are unfavorable, we often put a condition that borrower should bring additional capital. Now, next we are going to see Nayak committee. So I am bringing the table in front of you, sir. Yes. So now we will discuss the most important table, Nayak committee and Tandon committee. So these two we will discuss in tandem. उसमें कैसे होता है कि नायक कमेटी का सेटअप क्यों हुआ था, तो बेसिकली एमएसएमई यूनिट्स को लिबरली फाइनेंस मिलना चाहिए, इसके लिए नायक कमेटी का सेटअप हुआ था। क्योंकि टंडन कमेटी जो है उसमें थोड़ा रिजिडिटी है, वो लिबरल फाइनेंस नहीं है उसमें, तो नायक कमेटी इसलिए सेटअप हुआ है कि इजी फाइनेंस एमएसएमई को मिलना चाहिए। तो उसमें नायक कमेटी में एकदम सिंपल है कि ग्रॉस जो एक्सेप्टेड सेल्स है, अभी जो ए है इसमें, तो ग्रॉस एक्सेप्टेड सेल्स जो है वन, इसमें हमने एग्जांपल में लिया है। फिर इसके पहले मैं ये बोलता हूँ कि ग्रॉस एक्सेप्टेड सेल्स के 20% इतना आपको उसको देना है, इतना सिंपल नायक कमेटी का कहना है कि आप लिमिट कितना देना चाहिए, तो व्हाट एवर एक्सेप्टेड ग्रॉस सेल्स यू डिसाइड, उसके 20% उसको लिमिट मिलना ही चाहिए फॉर एमएसएमई। अगर आप नहीं देते हैं तो इट शुड बी प्रॉपरली जस्टिफाइड एंड यू शुड टेक इन राइटिंग फ्रॉम द बोरोवर कि हम कम क्यों दे रहे हैं एंड इट इज एक्सेप्टेबल टू हिम। तो ये मेजर है कि इसमें नायक कमेटी में ये मेजर है कि ग्रॉस एक्सेप्टेड सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात है कि इसमें वही उन्होंने बोला है कि नो डिटेल असेसमेंट इज रिक्वायर्ड, ओनली आपने समझो नोट में छोटे छोटे पर्टिकुलरली 25 लाख 50 लाख तक भी आपने ग्रॉस एक्सेप्टेड सेल्स के 20% है, इसलिए हमने लिमिट दिया है और हमने अकाउंट का रिव्यू रिन्यूअल किया है, तो भी चलता है। लेकिन फिर भी हम टू बी ऑन सेफर साइड हम डिटेल में असेसमेंट करते हैं। तो नाउ वी विल सी द डिटेल असेसमेंट एज पर नायक कमेटी। उसमें मैं पहले आपको एजम्पशंस देता हूँ। नायक कमेटी में एजम्पशंस ये है कि उसमें डेटर्स लेवल जो है वो 3 मंथ्स का लिया है, देन स्टॉक लेवल जो है वो 1 मंथ का लिया है, और क्रेडिटर्स लेवल 1 मंथ का लिया है। ये मैं पहले ही आपको इसलिए बताता हूँ कि बाद में हम जब टंडन कमेटी ये करेंगे तो देन उसका रेफरेंस आपको मिलेगा। तो नायक कमेटी में भी ग्रॉस एक्चुअल सेल्स हमने एक्सेप्ट कर लिया समझो 1000, तो उसमें ऐसा है कि व्हाट विल बी द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोवर टोटल विल बी 25% ऑफ ग्रॉस एक्सेप्टेड सेल्स। So in this example, when gross accepted sales are 1000, the gross working capital requirement will be 250. Then margin, or we say it as NWC, it will be minimum 5% of gross accepted sales. So it will be 50 in this case, and working capital, and then as per actual NWC, point number D, तो एक्चुअल एनडब्ल्यूसी इज हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, हम जो एग्जांपल ले रहे हैं तो उसमें एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में हमने ऊपर जो एनडब्ल्यूसी कैलकुलेट किया करते हैं ऊपर के टेबल से, तो वी एज्यूम दैट वो 100 रुपीज है। तो उसमें फिर जो एमपीबीएफ आएगा, तो नायक कमेटी में ये है कि एमपीबीएफ का लॉन्ग फॉर्म है मिनिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। मीन्स नायक कमेटी क्या बोलती है, 20% है वो मिनिमम है। फिर आप दूसरे कोई मेथड से कैलकुलेट करते हो और उससे ज्यादा आता है तो यू कैन सैंक्शन मोर, बट आप इससे नीचे नहीं कर सकते। अगर आप इससे नीचे किया तो वो जो एमएसएमई यूनिट है उसके ऊपर जाती होगी, तो इसलिए दिस विल बी मिनिमम। तो उसमें क्या है, बी माइनस सी, अभी इस केस में बी माइनस सी 250 माइनस 50 आएगा 200, और बी माइनस डी 250 माइनस 100 आएगा 150। तो वैसे देखा जाए तो अगर आप उस रूल से गए तो उसको 200 का हमने सैंक्शन करना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसका एक्चुअल एनडब्ल्यूसी 100 रुपया है, इसलिए उसका एमपीबीएफ 150 है। हम 150 हम इस टेबल के हिसाब से वी विल सैंक्शन 150 टू द बोरोवर, बट इफ द बोरोवर इंसिस्ट कि आपको आरबीआई के रूल के हिसाब से 20% के हिसाब से आपने 200 करना चाहिए सैंक्शन, तो वी विल हैव टू सैंक्शन 200। हम नहीं, अगर नहीं है तो उसके पास से रिटर्न में लेना पड़ेगा कि आई विल एक्सेप्ट 150 दो 200 इज अवेलेबल टू मी।
अगर कोई बाद में ये क्यों जरूरी है, क्योंकि बाद में कोई बोरोवर कंप्लेन भी कर सकता है कि आरबीआई ने 20% देने के लिए बोला है लेकिन बैंक ने मुझे कम दिया इसलिए मेरा बिजनेस फेल्योर हो गया. टू अवॉइड दिस दिस caution is required. Okay. Okay. Anything Rahul ji on Nayak committee? No, sir, absolutely Or clear. then yes, then we will go next to Tandon committee. हाँ, टंडन, अभी ये टंडन कमेटी और नायक कमेटी. नायक कमेटी को हम टर्म करते हैं कि टर्नओवर मेथड, और टंडन कमेटी को वर्किंग कैपिटल गैप मेथड बोलते हैं. अभी हम सेम जो एजम्पशंस नायक कमेटी में है, इसलिए मैंने आपको पहले नायक कमेटी में एजम्पशंस दिए कि नायक कमेटी में भी एजम्पशंस ये किए हैं कि डेटर्स लेवल इज 3 मंथ, स्टॉक लेवल इज 1 मंथ, क्रेडिटर्स लेवल इज आल्सो 1 मंथ. तो हमने टंडन कमेटी में भी अभी यही एजम्पशंस लिए हैं कि उसका टोटल करंट एसेट समझो 333, उसका ग्रॉस एक्सेप्टेड सेल्स वही हमने ऊपर के जो है ग्रॉस एक्सेप्टेड सेल्स 1000 लिया है. ठीक है, तो अभी डेटर्स लेवल उसका 3 मंथ्स है, तो एज पर द ग्रॉस एक्सेप्टेड लेवल्स उसके अगर 3 मंथ्स के डेटर और 1 मंथ का स्टॉक ये ऐड किया जाए तो हिज टोटल करंट एसेट्स विल बी 333. So Rahul ji, you can put here as 250 plus 83. 250 will be debtors level for 3 months, and plus 83 it will be stock level. So total current assets will be 333. Then current liabilities का लेवल अगर 1 मंथ का है एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस, अगर करंट लाइबिलिटीज 1 मंथ है तो इट विल बी आल्सो 83. ये So क्रेडिटर्स लेवल 1 मंथ. हाँ, क्रेडिटर्स लेवल 1 मंथ, सो इट विल बी 83. एंड देन इस ये कैसे आएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय 12, 1000 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 1 मंथ का आएगा, तो इट विल बी 83. यस. देन A minus B, it is working capital requirement, means 250. It is called as actually working capital gap. We say it as working capital gap. इसलिए हम ऊपर बोला कि वर्किंग कैपिटल गैप मेथड, WCG. अभी नायक कमेटी के मैंने पहले बोला कि टंडन कमेटी थोड़ा स्ट्रिंजेंट है, तो स्ट्रिंजेंट क्या है, तो उसमें टोटल करंट एसेट्स के 25% मार्जिन होना चाहिए एज पर टंडन कमेटी. तो मार्जिन जो है डी में 25% ऑफ टोटल करंट एसेट्स आएगा. हाँ, डी इट विल बी 25% ऑफ टोटल करंट एसेट्स. So And 25% of again 3. हाँ, 25% of 333. yes. So it comes to 83 again, and actual NWC as per balance sheet is 100. ऊपर के एग्जांपल पे भी 100 लिया है, इधर भी हमने 100 लिया है. Right. So again in this case also MPBF, in this case this is maximum permissible bank finance. In case of Tandon committee it is maximum permissible bank finance, so it is C minus D or C minus E, whichever is less. तो इसमें 250 minus 83 और 250 minus 100, तो 150. This will be the maximum permissible bank finance as per टंडन कमेटी. अभी गाइडलाइंस क्या है सीसी असेसमेंट के लिए, तो अगर टंडन कमेटी में आपका एडवांस कम आ रहा है और नायक कमेटी में ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि वी विल सैंक्शन द लिमिट एज पर नायक कमेटी. हम नायक कमेटी के हिसाब से लिमिट सैंक्शन करेंगे. तो नायक कमेटी में कितना होना चाहिए, एक्चुअली 20% के हिसाब से 200 होना चाहिए. करेक्ट. तो 200 हम लिमिट सैंक्शन करेंगे, एंड वी विल monitor the account, CC account, and we will allow the drawing power per month as per the Tandon committee. Means we take the stock statement every month, means stock plus debtors minus creditor, ये करके हर महीने हम उसका DP निकालेंगे, वो which will be as per Tandon committee. इसलिए नॉर्मली क्या होता है ना कि हम सीसी असेसमेंट करते हैं तो वो 1 डे का फेनोमेना रहता है. मीन्स हम फिगर्स लेते हैं हर साल के, मार्च समझो मार्च 21 है, मार्च 20 है, मार्च 19 है, ये तो हम मार्च के फिगर लेते हैं, वो उस दिन का फिगर रहता है. लेकिन ओवर द ईयर देयर आर ऑलवेज फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस. तो उसमें कभी कभी उसके पास स्टॉक ज्यादा रहेगा, डेटर्स ज्यादा रहेगा, कभी कभी डेटर्स जल्दी रियलाइज नहीं होंगे,
तो इसलिए ये सब कंसिडर करके हम इसका लिमिट विल बी सैंक्शनड एज पर नायक कमिटी एंड इट विल बी मॉनिटर्ड एज पर टंडन कमिटी। दूसरी बात ये है कि टंडन कमिटी अभी हमने क्या किया है कि डेटर्स लेवल, स्टॉक लेवल ये 3 मंथ 1 मंथ लिया है, लेकिन एक्चुअल बिजनेस में हम जाएंगे, एक्चुअल देखेंगे तो इसमें वेरी करता है। ऑलवेज डेटर्स लेवल बोरोवर्स रिक्वेस्ट फॉर 4 मंथ्स 5 मंथ्स, बिकॉज अभी तो कोरोना सिचुएशन है, उसमें तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन नॉर्मली 3 मंथ्स में भी डेटर्स का रिलेशन नहीं होता है बहुत सारे बिजनेस में, पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तो होता ही नहीं, या गवर्नमेंट का जहाँ ये रहता है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट जहाँ रहते हैं वहाँ तो वहाँ भी वैसे होता है कि 6 महीने में भी कभी कभी नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी वी रिस्ट्रिक्ट इट फॉर एमएसएमई, इट इज रिस्ट्रिक्टेड, मैक्सिमम वी कैन गिव इज 6 मंथ्स। तो इसलिए ये थोड़ा बहुत वेरी होता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि टंडन कमिटी में हायर भी लिमिट आ सकता है, मींस नायक कमिटी में कम आएगा लेकिन टंडन कमिटी में ज्यादा आएगा। तो ऐसे केस में हम टंडन कमिटी के हिसाब से ज्यादा भी सैंक्शन कर सकते हैं, क्योंकि नायक कमिटी बोलता है दैट इज मिनिमम, एंड टंडन कमिटी का अगर ज्यादा है उसे, तो उसमें दोनों में से ज्यादा जो आएगा वो हम सैंक्शन कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। हाँ, आगे। और राहुल जी नीचे कुछ है ना? हाँ, तो हमने ये देखा कि दस वी कैन ऑब्जर्व दैट नायक कमिटी हैज टेकन 3 मंथ्स। तो उस दोनों में ये एग्जांपल अगर देखा जाए तो दोनों में सेम आ रहा है 150, लेकिन एक्चुअल में कभी भी ऐसे नहीं होता। ये मैंने आपको बोला कि एक्चुअल में टंडन कमिटी से हम कैलकुलेट करते हैं तो वो लिमिट ऑलवेज ज्यादा ही आता है। सर तो टंडन कमेटी से हमें डीपी कैलकुलेट करना है, बराबर है? हाँ, एक्चुअली असेसमेंट में हमने दोनों करना है, असेसमेंट में हमने दोनों करना है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर जो एकदम, हम क्या बोलते हैं उसको, कि एकदम डिसिप्लिन्ड बोरोवर रहते हैं ना, तो डिसिप्लिन्ड बोरोवर के केसेस में टंडन कमिटी में लिमिट कम आएगा, नायक कमिटी में ज्यादा आएगा। जिनका डेटर्स लेवल 3 मंथ से कम है, स्टॉक लेवल भी 1 मंथ से भी कम है, उस केसेस में आपका नायक कमिटी में ज्यादा आएगा ये, और टंडन कमिटी में कम आएगा। लेकिन इतने डिसिप्लिन बोरोवर बहुत कम रहते हैं, 10% 15% रहते हैं। मैक्सिमम तो हम जब जब एक्चुअल काम करते हो तो हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स रहते ही है बिजनेस में। तो इसलिए नॉर्मली डेटर्स लेवल इज ऑलवेज मोर देन 3 मंथ्स, इट इज 4 मंथ्स और 5 मंथ्स और 6 मंथ्स। स्टॉक लेवल भी बहुत जनरली लोग क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, समझो ट्रांसपोर्टर्स का स्ट्राइक हो गया तो स्टॉक पे असर करता है, इसलिए लोग पाइल अप करके रखते हैं, स्टॉक लेके रखते हैं, इसलिए स्टॉक लेवल भी नॉर्मली ज्यादा ही रहता है। तो इसलिए फिर इसमें लिमिट ज्यादा आता है। तो तो इस तरह से बेसिकली सर हमें टंडन कमेटी और नायक कमेटी दोनों से प्रोसेस करना है, और जिसका भी हाँ, लिमिट ज्यादा आएगा उसको हमें उसको वर्किंग कैपिटल का अमाउंट देना है। यस यस यस। और जैसा कि आपने बोला टंडन कमेटी डिनोट्स मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, और जो हाँ, नायक कमेटी है दैट डिनोट्स मिनिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो जिसमें भी वैल्यू ज्यादा है उसके हिसाब से हमें ड्राइंग पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस यस यस। और ये एक अंडरलाइन है कि नायक कमेटी के हिसाब से लोन सैंक्शन करो, लिमिट सैंक्शन करो, एंड टंडन कमेटी के हिसाब से मंथली मॉनिटर करो। दैट इज द अंडरलाइन। ओके ओके, ओके। सो एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू सो मच ये बताने के लिए सारा डिटेल में असेसमेंट पार्ट। एज आवर व्यूअर्स वुड हैव अप्राइज्ड दैट टुडे वी हैव लर्नड समथिंग ऑन टंडन कमिटी एंड नायक कमिटी। Also we have seen the tables like gross profit, profit after tax, then net working capital, etc., and how to analyze the balance sheet, the basic major items under that section. So I hope this video was useful to you. If you have any doubts regarding this video, please do write your doubts on the comment box, because we are going to make a separate video on all the comments that is received by us. So we'll discuss in Yes, detail about all those comments. yes. Also in the next video we'll come out with some other aspect of the CC renewal, the major points. Yes sir. हाँ, वह आई विल जस्ट अगेन, राहुल जी ने बताया, फिर भी मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, नायक कमेटी एंड टंडन कमेटी, ये समझ के लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो यू कैन, उसमें आप इसमें भी दे सकते हो, जो फिर इसमें क्वेश्चंस आप कर सकते हो, या फिर इवन राहुल जी को डायरेक्टली यू कैन व्हाट्सअप, एंड ऑन माय मोबाइल नंबर आल्सो यू कैन व्हाट्सअप, यू विल बी, वी विल गाइड यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि ये एक बार समझ में लिया ना, तो 10 लाख के प्रपोजल के लिए या 15 लाख के प्रपोजल भी वही करना है,
एंड फॉर 1 करोड़ 10 करोड़ प्रपोजल के लिए भी वही करना है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। इसलिए इस पार्ट में थोड़ा ज्यादा आपके पास से आई विल बी एक्सपेक्टिंग मोर क्वेश्चंस। ओके राहुल जी। right sir, right. So I hope this video was useful to you. अगर ये initiative हमारा अच्छा लगा आपको, so please do subscribe to the channel and press the bell icon so that you get the latest updates as soon as we upload a video. I once again thanks Ghanekar sir. Please stay tuned, take good care of yourself, and wait for our next video to get upload on this series of credit appraisals. Thank you sir. Now I'm going to Thank you. stop this